Okay. So yesterday we started our discussion wherein we kind of discussed what a declarative programming versus imperative programming is. So we said that declarative way is wherein you kind of, declare things as simple as that, to be more precise. It's like, I want an H1. So I'll just write an H1. I'll put some text within it. So that text gets rendered similar to that. Imperative, on the other hand, is basically how JavaScript is an imperative way of writing code. So you basically write step by step on how you want to build this. So that's imperative way of writing code. Okay, React is basically declarative way of writing code. What that means we've just covered in the next section basically. So we kind of talked. Acha, let's open this as well, and we keep this on the left, this one on the right. There you go. Okay. So we talked the difference between JS DOM and React DOM and how they are different, how they are similar. We kind of spoke about it, right? The DOM is basically the way in which you've coded till this point, right? Vanilla JavaScript use करके JS DOM we've done. Uh, so we kind of discussed how that looks like, right? So if I open it in my live server over here, and if you see this this particular element that has been created, right? It is basically referring to that DOM node itself. But on the other hand, whenever we open up any element, whenever we basically check this, like in here, in this piece of code, like let's say if you check this console.log of element, like, or you just create something else altogether. Let's call it header. And let's put H1 or something like this. So when you check this one, let's increase the size a little bit. So I'll just console log this header that I've just created using a React element, right? So this is React element. And when you open up console and check, let's say this looks like a JavaScript object. So React elements are not actual JavaScript DOM elements, but they are a representation of element. What do I mean by that? Representation. Let's talk about it simply. So whenever you see any award functions, when the actual person could not attend and take that award, so someone comes and say, I'm representing this person, so I'll take on his behalf. Correct? So this object represents a DOM like element, but it's not actual DOM element. I hope I am making a little sense here. Yes? ठीक है, वो एक्चुअल डॉम एलिमेंट नहीं है, बट वो सारे डिटेल्स मेंटेन करता है जिससे कि हम डॉम एलिमेंट बना पाएंगे फ्यूचर में. लेट्स से आई एम नॉट शेयरिंग माय स्क्रीन. अच्छा, आई थिंक योर, अच्छा, that was before I've already zoomed in. Okay, fine. So what I was saying is that this React element that we have created in a React project, right? So this React element is a representation of a DOM element. Okay. So what React DOM does is basically with the render method, it takes React element. So this is a React element. So see, if I put header over there, so you can see that header being displayed. Like let's say instead of this element, let me close this, and यहाँ पे I'll just call it, instead of list of fruits, I'll just call it hello. So you see that hello over there. Now what React DOM does is it takes a React element. Okay, it basically converts it to DOM element, and
display that DOM element onto you DOM, obviously, right? Display that element onto DOM. First, it converts it into a DOM element because this is a DOM, right? So only DOM format gets accepted. JavaScript object, it doesn't accept. So UI, basically, to make it compatible, it converts that React element into DOM element, this library called React DOM, and display that element onto the DOM, right? So yeah, that's one thing. All right. One question is, can we create an element inside render method directly instead of writing like this? So, again, when I get these questions, can we do this? My answer will be pretty standard. You'll get habituated to that. Okay, why not do it and see for ourselves? Maybe we'll create an H4, and I'll just say, hey, well, it's working. So you can. It's as simple as that. So whenever you have a question, okay, can we do this? Please do it and you will understand whether it works or not. Okay. So the more you explore, the more you do random stuff, that's when you'll get a better understanding. All right. It seems easy. Why don't we do this way? The reason is that it's not going to be one element, correct? So when you put something like this, ऐसे अगर हम सारे एलिमेंट्स लाके यहाँ पे रख देंगे, it works, but it doesn't look that great. Readability wise, it's not that great, but it works. There's nothing wrong with that. It works. It's just that not that readable. देखने के लिए अच्छा नहीं लगता, but हाँ, standard भी नहीं है. So yeah, but ultimately you're just rendering that element anyway. All right. So we kind of discussed that. Right, we kind of discussed why React. So we talked about how React is better performance wise. We'll again discuss that today, and especially we focused, हमने इस पे ज्यादा फोकस किया था कि easy to read, like आप कोड HTML की तरह से लिख सकते हो, and in within a JavaScript file, and that gets rendered, that gets displayed onto the UI, right? So this HTML like कोड HTML की तरह दिखता है, बट HTML है नहीं. इसका नाम है JSX. ब्राउजर्स को JSX समझ नहीं आता. ब्राउजर्स के नॉट अंडरस्टैंड JSX, करेक्ट? सो इन ऑर्डर फॉर ब्राउजर्स टू अंडरस्टैंड JSX, हम क्या यूज करते हैं? कम ऑन, वी काइंड ऑफ डिड दिस. आई एम एक्सपेक्टिंग सम आंसर्स. Great, 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 great. You are correct. Manish, Supriya, Sushil, Balaprasad, Ankur, Manish, Shivam, Nitin. Yep. बेबल. बेबल एक और लाइब्रेरी है जो रिएक्ट का एक फ्रेंड लाइब्रेरी है. लाइक इट्स अ लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज, बहुत सारी लाइब्रेरीज मिला के रिएक्ट काम करता है. तो रिएक्ट का एक और फ्रेंड है बेबल करके. दैट गाई हेल्प्स कन्वर्ट दिस JSX. जब ये डिस्प्ले होता है ना, जब ये ब्राउजर पे जाता है ना, तो ये कन्वर्ट कर देता है. इट कन्वर्ट्स दिस इनटू react डॉट क्रिएट एलिमेंट, एंड which is basically JavaScript code, so that browser also understands. So हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी, JSX and Babel, and how you can use basically, right? So adding JSX to a project, how do we do that? Babel एक script add किया हमने, and then we did this, right? We kind of also saw ये browser के how, like, there is a online editor which basically shows you how you know JSX gets converted into React code, जैसे कि ये, right? So we kind of also saw that. Then at the end, सेशन के खत्म में थोड़े निटी ग्रिटीज चेक किए थे हमने, मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू JSX के, how an element basically gets converted.
जैसे अपन लोगों ने यहाँ पे एक पी टैग लिखा जिसका आईडी था कोट, क्लास नेम था मैसेज, करेक्ट। सो ये ना, जब आप यू नो दिस इज JSX कोड, राइट? व्हेन इट गोज टू द ब्राउजर, बेबल टेक्स केयर ऑफ कन्वर्टिंग इट लाइक दिस। वो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसको पी टैग दिख रहा है तो इसने पी टैग लिख दिया। एंड सेकेंड वन इज बेसिकली वेर इन यू पुट प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट। सेकेंड आर्ग्यूमेंट में आप सारे प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स ऐड करते हो, राइट? तो ये आईडी कोड ऐड हो गया, ये क्लास नेम ऐड हो गया, एंड थर्ड वन में चिल्ड्रन, बेसिकली चिल्ड्रन मतलब जो भी इसके पेट में है, या पी के पेट में जो है उसका चिल्ड्रन है, राइट? तो ये थर्ड आर्ग्यूमेंट की तरह इट गेट्स डिस्प्ले, लाइक इट गेट्स कन्वर्टेड। सो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, वाई डू वी डू दिस? क्यों करते हैं हम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट? सीधे सीधे क्यों नहीं लिखते? डेवलपर एक्सपीरियंस, राइट? एज ए डेवलपर आपको ये बहुत इंट्यूटिव लगता है ना, लाइक लिखने में यही आसानी होती है। अभी ये एक एलिमेंट है तो फिर भी ठीक है, बट अगर आपको बोल दें कि ये इंटायर थिंग, चलो कर ही लेते हैं, राइट? सो मैं मैं कॉपी करता हूँ, इसको डिव बना देते हैं एक सेकेंड के लिए। इसको रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट से लिखना होगा अब आपको, ओके? सो प्रॉपर्टीज क्या है बटन के? लेट्स ऐड दैट, प्रॉपर्टीज आईडी क्लास नेम ऑन क्लिक। चलो लेट्स डू दिस एक्सरसाइज। और class name button, and on click, whoops, on click button click, एक फंक्शन है बटन क्लिक करके, oh sorry, it's button clicked only, so this function will be invoked. Great. Now question is basically, let's see कैसे, how can I give this to you? Great. Hmm. Okay, I'll tell you how I'm gonna give this to you. uh, Convert this JSX code to JavaScript or non-JSX code. So let me take this. इसको आपको कन्वर्ट करना है into non-JSX code. Okay? तो take this one and convert this into non-JSX code. एक एग्जांपल दे देता हूँ. What I want to input है, let's say H1 hello. The output, like what I'm expecting from you is react.create element H1. Yeah, this is what I'm expecting from you. And let's say if I give you this, oh, doesn't look that great. So let's see. Hmm, maybe I'll not add this, and then let's see how it looks. This is a okay. This is what I could find. Markdown, view as markdown. Okay.
Still a little better, but not that great. Hmm. Okay. Let me see if I can find any other option. Return to editing. And what if I keep this as a string? Okay. अरे do you guys have any other option? Code pen, हाँ वही अब यूज करना पड़ेगा. If not anything, I'll just stick to that. So, uh, code pen, let's stick to that. I didn't want to use it. It's a overkill actually for a simple thing like that. Anyways, it is what it is. Let's just take this. Okay. So this is what you have. Task one. Anyways, save it and share it. Okay. So there you go. So I've shared a link. I haven't shared it. I have to share it with everyone. I will share a link. You guys can open that and convert it into non-JSX code. That's all you need to do. Okay, that's your task number one. I'll give you 3 minutes and then we'll continue. Okay. All right. Three minutes it is. Let's say we have to render this element, and if we do, let's open with live server. And yeah, there you go. So you have something like this: apple, orange, banana, and you can see that. Correct. H1, some p tag, no, some ordered list basically. Okay, great. So you have three items in here. Now, if I ask you to write this without using JSX, like plain JavaScript में, like React dot create element करके, if you have to write the same thing, how do you do? So we'll say React dot create. एक second. So let's do a multi-line comment here and put this inside. Okay, so that it's pretty visible. अभी मेरे को ये create करना है React dot create element यूज करके. तो React dot create element के इसे एक div ऐड कर दिया एंड प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स कुछ नहीं है तो इसको एम्प्टी रख सकते हैं ऐसे. राइट. व्हाट इज द चिल्ड्रन ऑफ डिव? ये जो डिव है इसके इसका कौन सा लाइक इसके चिल्ड्रन कौन है? एक, दो, तीन. तीन एलिमेंट्स है इसके चिल्ड्रन. तो मैं बस यहाँ पे एक H1 लिखूंगा तो वो भी बस नहीं होगा. राइट. तो तीन चिल्ड्रन है. एक, दो, तीन. सो हाउ डू आई राइट इट? एक अरे लिख लेते हैं. ओके. सो अरे में पहला आइटम जो है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड यहाँ पे एक H1 लिखा मैंने. ओके.
एंड इट्स ए कार्पे डीएम। इसको भी निकाल देते हैं। सो वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, ये H1 जो पहला चिल्ड्रन है वो दिखाई देने लगा अभी। इसको अभी हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं ब्राउजर में भी। इफ आई ओपन दिस, आपको वो डिव के अंदर वो H1 दिख रहा है, राइट। एक और चाइल्ड है विच इज पी टैग, उसमें सीज द डे लिखा हुआ है। तो यूल से रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट पी टैग एम टी सीज द डे, वो भी ऐड हो गया। करेक्ट। थर्ड वन इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, ठीक है। तो उसको भी लिखेंगे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट ओ एल। ओके, उसके कोई प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स नहीं है तो एम्प्टी रख दिया। अब इसके 3 चिल्ड्रन है अगेन, तो फिर से एक और अरे बनेगा नेस्टेड उसके अंदर। पहला चिल्ड्रन कौन सा है? ये एल आई है जिसका एप्पल चिल्ड्रन है, राइट। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट एल आई एप्पल ऑरेंज बनाना। 3 आ गए ऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे आइटम्स एडेड। तो अभी आप बताइए विच इज मोर रीडेबल, फर्स्ट वन कि सेकेंड वन? ताकि बिकॉज ये करली क्यों, ये एम्प्टी क्यों है? बिकॉज देयर आर नो प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट। अगर इसका कोई क्लास नेम या कुछ भी होता, सो लेट्स से अगर इसका क्लास नेम होता मीन या कुछ भी, तो हम लोग वो ऐड करते क्लास मीन समथिंग, वो कुछ भी प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स वो सेकेंड आर्ग्यूमेंट में आएंगे। सो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट कुछ इस तरह लिखते हैं आप, राइट। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, फर्स्ट वन में आप टैग नेम लिखोगे कि वो पी टैग है, H1 टैग है, एल आई टैग है, कौन सा टैग है, राइट। जब आप एलिमेंट क्रिएट करोगे विच टैग डू यू वांट वो लिखोगे। प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स लिखोगे, चिल्ड्रन लिखोगे। अगर चिल्ड्रन एक से ज्यादा है, एक रहा तो आप डायरेक्टली उसको मेंशन कर दोगे यहाँ पे कि ना H1 था जिसपे कार्पे डीएम था, तो आप डायरेक्टली मेंशन कर दोगे जैसे कि नो स्ट्रिंग कार्पे डीएम करके। एक से ज्यादा चिल्ड्रन है यहाँ, जो कि यहाँ पे वो केस है, राइट। मेन नाम के डिव में there are 3 children. One is H1, which has text carpe diem, and then there is P tag, which has text seize the day. Then there is a ordered list tag, which have 3 more children. So in that case, आप ये ऐसे नहीं लिख सकते, आपको ये सारा 3 भी लिखना है ना। तो बेसिकली एक अरे क्रिएट कर सकते हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज, इसको और एक सिंपल एग्जांपल से भी समझते हैं। लेट्स से लेट element इक्वल टू डेफ। अच्छा, वो वही एक एग्जांपल, थोड़ा सा इसको भी मैं चेंज करता हूँ। लेट्स से उप्स, हाँ, ये है क्या, राइट। अभी इतना सा था, और सिंपल कर देते हैं इसको 2 सेकंड के लिए। ठीक है, तो इसको हटा के हमने फेंक दिया नीचे। एंड ये एलिमेंट जो है, इसमें एक डिव है जिसका एक चिल्ड्रन, जिसका एक और चाइल्ड है विच इज H1। ओके, बहुत सिंपल, और सिंपल कर दिया हमने। ये तो बाद में आएगा फिर, ठीक है। सो अब इसको कन्वर्ट करना है, राइट। कैसे करेंगे? चलो, लेट्स से लेट एलिमेंट इक्वल टू रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ओके, एक डिव बना लिया हम लोगों ने। ओके, इसका कोई प्रॉपर्टीज है? हाँ, एक क्लास नेम है ना, मेन करके, तो उसको ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में लिख लेंगे क्लास नेम, वैल्यू विल बी मेन। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी कार्पेडियम।
एंड हो गया। कितने लोगों को लगता है कि ये करेक्ट कोड है? हाउ मेनी ऑफ यू गाइस थिंक दिस इज करेक्ट? ओके, करेक्ट। आई सी 50-50 ऑलमोस्ट। आधे लोग बोल रहे हैं कि करेक्ट है, आधे लोग बोल रहे हैं कि रॉन्ग है। एंड द आंसर इज दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्लास नेम इज रॉन्ग? नो, क्लास नेम तो सही है। यस। तो चिल्ड्रन में ये जो div का चिल्ड्रन है, div का जो बेटा है, इट्स एन H1 टैग। वो खाली स्ट्रिंग नहीं है ना, राइट? इट्स एन H1। ये जो div है ना, क्लास नेम मेन, इट्स चिल्ड्रन, इसका चाइल्ड जो है ये H1 है। खाली स्ट्रिंग नहीं है। अगर ये एम्प्टी होता, लाइक अगर ये कुछ नहीं होता, ये H1 नहीं होता और ये कार्पेडियम डायरेक्टली होता, तब ये करेक्ट होता। बट अभी ये करेक्ट नहीं है, राइट? बिकॉज ये H1 उसका चाइल्ड है। तो क्या करेंगे हम लोग? एक और रिएक्ट एलिमेंट है, राइट? तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग बोलेंगे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट H1। इसके कोई प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स नहीं है, तो उसको या तो नल रख सकते हो और या फिर एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख सकते हो। और H1 का कोई चाइल्ड है, हाँ ये स्ट्रिंग है कार्पे डियम, तो उसका चाइल्ड आ गया, ऐड कर दिया हमने। दिस इज हाउ यू डू इफ यू हैव टू डू विदाउट JSX। अभी दो में ही इतने कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तो इमेजिन व्हेन यू हैव समथिंग लाइक दिस, जो हमने किया था 2 सेकंड पहले। सेकंड। हाँ, राइट। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि अभी द थिंग दैट वी जस्ट undid। हाँ, ऑल राइट। सो अगर इफ एलिमेंट इज दिस बिग, तो आपको इस तरह कुछ क्रिएट करना पड़ेगा उसको, राइट? रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट डिव विथ आईडी, विथ क्लास नेम मेन। और इसका एक चाइल्ड, इसके मल्टीपल चाइल्ड है, तो सारे को अरेज में डालना है। अगर एक होता तो मैं डायरेक्टली डाल देता। इफ देर आर मोर देन वन चाइल्ड, आप एक अरे क्रिएट करोगे, देन यू स्टार्ट एडिंग, लिस्ट करते रहोगे उसके अंदर, यू क्रिएट अनदर चाइल्ड, यू क्रिएट अनदर चाइल्ड। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इसको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। लेट्स से गिव मी अ सेकंड। हाँ, ओके। सो div विथ क्लास मेन, यही है ना? इसके कितने चिल्ड्रन है? एक H1 हो गया, ये P हो गया, और ये ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, करेक्ट? सो एक हो गया H1 और एक हो गया P टैग। दिस हाउ यू वुड रिप्रेजेंट डॉम एलिमेंट्स। और एक हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, एक्सक्यूज मी, ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, ये थर्ड चाइल्ड हो गया। अभी ऑर्डर्ड लिस्ट के 3 चाइल्ड एलिमेंट्स है, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, करेक्ट? तो हम वो तीन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। Li टैग जिसका टेक्स्ट था एप्पल, ओके।
एक और li टैग जिसका यू नो टेक्स्ट था ऑरेंज। उप्स। एक और li टैग जिसका था बनाना। तो इसके 3 चिल्ड्रन हो गए, तो हम ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं इसको। करेक्ट, ट्री स्ट्रक्चर। इसको ट्री स्ट्रक्चर ही बोलते हैं ना। एवरीबॉडी विथ मी ऑन दिस? परफेक्ट। तो ये वो फर्स्ट div जो क्रिएट किया हमने, जिसका क्लास नेम था मेन। एंड इसमें देर आर 3 आइटम्स। अगर एक होता तो वी वुड हैव डायरेक्टली रिटर्न इट। एक से ज्यादा है तो वी विल यूज एन एरे, and then we describe h1 carpe diem. So this is that h1 which has text carpe diem. Then you have a p tag which has some other text. तो ये वो वाला p tag है जिसका other text है। Then एक ordered list है, so which is this ordered list. इसके 3 और children हैं, li apple orange banana, li apple orange banana. So drawing a tree diagram I will make you understand better. So this approach of using JSX seems a lot better than sticking to this react.create element. Ultimately, जब आप ये लिखोगे, जब आप ये लाइन नंबर 24 लिखोगे, करेक्ट, इवन दो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, तो वो इंटरनली वो react डॉट क्रिएट एलिमेंट ही कन्वर्ट होता है। बेबल उसको कन्वर्ट कर देता है। ये डेवलपर की आसानी के लिए JSX यूज होता है, नथिंग एल्स। इट इम्प्रूव्स डेवलपर्स एक्सपीरियंस। मैं एज ए डेवलपर वुड प्रेफर टू यूज दिस वन, राइट? तो डेवलपर्स के लिए ही उन्होंने कुछ आसानियां पैदा की। दैट्स व्हाई they've created this JSX, and that's why they created this Babel, so that you know ऑपरेशन वाइज भी हमें कोई दिक्कत ना आए। बेसिकली व्हेन दिस कोड ultimately JavaScript code has to run in browser only understand JavaScript, उसको JSX समझ नहीं आता ब्राउजर को। सो ये बेबल इंटरनली ब्राउजर के अंदर कन्वर्ट कर देगा जावास्क्रिप्ट में। ओके, सो दैट्स व्हाई JSX इज यूज, एंड दैट्स व्हाट JSX बेबल इज ऑल अबाउट। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। कमिंग बैक टू दिस, फिल का हो गया ना सारा? हाँ। सो वी काइंड ऑफ डिस्कस इंटरपोलेशन ऑल्सो। बेसिकली अगर कोई वेरिएबल भी है, you can basically put curly brace and put it interpolation like how you would do in ES6 template literal. So you can also do that here. All should be self-closing tag. We saw how event handlers work, basically, how you can write a non-click event handler here and it works. So yeah, we kind of spoke about we also discussed के inline styling जैसे हम लोग style करके use करते हैं, how you can do it in here. हमने एक और tool भी बताया था, basically which will initially help you convert things from HTML to JSX. जब तक आपको आदत नहीं हो जाती ये टूल से भी आप थोड़ा you can play around. So we kind of discussed all these things. Now, in today's session, we'll continue. We'll learn few more things. Okay. So कुछ components and props करके हैं. We'll kind of discuss that. We'll start our discussion with that. So, अभी फिर से इसको we'll simplify, or we'll take another example maybe. I'll just stop this and close this, and let me open another example, example 2. But यहाँ तक सब everyone's clear, right? Perfect. All right. So same index.html, and we'll just stick with that same template. Okay.
ये टेम्पलेट लेके विल जस्ट स्टिक विद दैट इनिशियली। तो इसी में आई हैव रिएक्ट लाइब्रेरी, रिएक्ट डॉम लाइब्रेरी एंड बेबल लाइब्रेरी। एक div है with id root in HTML body, and the entire React application will live here. Then we have root element, document dot get element by id, and element can be anything. So I'll just create a p tag and call it, hello. And if I run this, open with live server here, so up you can see that hello. Okay. So this is our bare minimum template. Okay, great. So we'll continue and we'll see what components and props and all these things are. I'll just take this, put it here, and we'll try to understand. Okay, notes भी बाजू reference के लिए रख लेंगे तो it'll be easier. So since there's only one file HTML and you understand this structure, I'll close this for better visibility. यहाँ पे we'll open this. Okay, great. So if I put this here, H1 or whatever, good morning. So if I write that, I can see that H1 with good morning here. Okay. So again, if I have to write good morning, I'll just write it again. Obviously, if I have to write it again, I'll again do this. Okay, this is one way. What can we do to, let's say const message equal to, can I do this? Good morning, and write it this way, message variable. ऐसे भी तो कर सकते हैं, right? Just saying, I mean, I'm just thinking out loud. SB we could do. All right. Just give me a second. I'll just move some of the things to a different screen. I want to see your responses also. So just give me a second. Okay. So let's put this here. हाँ. Hmm. Questions अगर आपके कुछ है तो I'll answer, but not right now. थोड़ी देर के बाद I'll take some of your queries. Okay. पहले ये गौर से सुन लेना, उसके बाद हम लोग if you have some queries I'll answer. So ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, correct? Now, let's say, what else can we do to make it a little better? Message one, या फिर let's say इसी को H1 भी ऐड कर सकते हैं, राइट? यहाँ पे ही H1 ऐड करके then you don't even need to do this. यहाँ पे you could just do message also. It also works. Good morning. Okay. कुछ नहीं, I'm just playing around. So this time I have this H1 which says good morning and I'm displaying it 3 times. If I have to display a different message each time, हमेशा गुड मॉर्निंग तो नहीं बताना मेरे को, गुड आफ्टरनून भी बताना होगा, मे बी गुड इवनिंग बताना होगा, या हेलो बोलना होगा, या हाई बोलना होगा, then how do I do that?
ओके। सो लेट्स से इसी को यू नो ये जो है ना, क्या हम एक फंक्शन लिख सकते हैं मैसेज करके, विच बेसिकली कैन टेक एनी टेक्स्ट एंड ये ना एक H1 रिटर्न करेगा जिसमें वो सेम टेक्स्ट होगा। एंड अगर मैं मैसेज गुड मॉर्निंग लिखूं तो वो रेंडर करेगा। अगर मैं मैसेज गुड आफ्टरनून लिखूं तो वो रेंडर करेगा। अगर मैं मैसेज हेलो लिखूं तो वो हेलो डिस्प्ले करेगा। सिंपल, राइट? पता नहीं लोग सेट इंटरवल क्या क्या यूज कर रहे हैं, वाई? इतना सिंपल ही तो है। कुछ नहीं करना रहा, जो टेक्स्ट हमने पास किया एज एन आर्ग्यूमेंट वही रेंडर करेगा। करेक्ट। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओवरथिंक। कोई सेट इंटरवल बोल रहा है, कोई कुछ और ही बोल रहा है। If I want to display some text, I can just pass that as an argument and it gets displayed, right? तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में मैंने गुड मॉर्निंग पास किया तो वो दिखाई दे रहा है। सेकंड में मैंने गुड आफ्टरनून पास किया तो वो H1 गुड आफ्टरनून रेंडर कर रहा है। थर्ड में मैंने मैसेज हेलो करके पास किया तो वो हेलो डिस्प्ले कर रहा है। 3 बार भी मैंने कॉल किया फंक्शन को, राइट? मैंने कल बोला था ना कि यू कैन राइट फंक्शंस ऑल्सो। फंक्शन फू रिटर्न बार ऐसे कुछ किया था हमने, याद है? तो इसके अंदर, राइट, ये कर्ली ब्रेस इंटरपोलेशन में हमने डिस्कस किया था कि हम फंक्शन भी इन्वोक कर सकते हैं एंड वॉट एवर रिटर्न वैल्यू होगा वो दिखाई देगा। अब वो बार करके एक स्ट्रिंग है वो दिखाई दे रहा है। उसी तरह जब ये फंक्शन H1 रिटर्न कर रहा है तो मैं जब ये इन्वोक करूंगा तो वो H1 वो वाले टेक्स्ट के साथ, गुड मॉर्निंग टेक्स्ट के साथ रेंडर कर रहा है। करेक्ट? से तो लिख सकते हैं ना? ओके। तो दिस पार्ट इज क्लियर। तो हाँ, अभी आस्क क्वेश्चंस। हम फ्रैगमेंट क्या अंडर फंक्शन नहीं लिख सकते। फ्रैगमेंट्स बेसिकली आपका बास्केट है। जैसे आप कोका कोला हवा में रखकर नहीं पी सकते, उसको एक बॉटल में रखना पड़ता है बिकॉज बहुत सारा लिक्विड होता है, राइट? तो उसी तरह ये कंटेनर की तरह एक्ट करता है। अगर आपके पास एक से ज्यादा एलिमेंट है जो आपको डॉम पे दिखाई देने होंगे, राइट? सो उसको एक कंटेनर में रखते हैं। ये फ्रैगमेंट वो कंटेनर की तरह काम करता है। दैट्स इट। ये बस एक H1 है। सो इफ यू सी ओवर हियर, अगर इसको हम इंस्पेक्ट भी करेंगे तो you see ये फर्स्ट H1 गुड मॉर्निंग, सेकंड H1 गुड आफ्टरनून, थर्ड H1 हेलो। ओके। तो इसको यू सी ओवर हियर, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे। छिक, 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 छिक। ये दिख रहा है आपको? सो लेट मी इंक्रीज दिस अ लिटिल बिट। डू यू सी दिस? यहाँ पे जो आपने लिखा कोड, नॉन JSX कोड, राइट? लाइक जावा JSX कोड, वो वही कन्वर्ट कर रहा है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में। बेबल यही करता है, इट कन्वर्ट्स इट इनटू दिस नॉन JSX कोड। तो ये मैसेज जब आप इन्वोक करोगे तो वो H1 रिटर्न करेगा वो टेक्स्ट के साथ। तो इसी रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट नल मैसेज ऑफ गुड मॉर्निंग, मैसेज ऑफ गुड आफ्टरनून, मैसेज ऑफ हेलो, 3 टेक्स्ट रेंडर करेगा।
ओके, ऑल राइट, एंड आई थिंक आई सी सम मोर क्वेश्चंस। जल्दी जल्दी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, how to use image just like the okay, are those small brackets necessary, or can I work without it? तो कैन का क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो मैंने क्या बोलता हूँ, प्लीज डू इट एंड सी फॉर योर सेल्फ। आप ट्राई कर लेना, अगर काम कर गया तो ठीक। देखो मैंने निकाल दिया, बट जब मैं सेव कर रहा हूँ इट इट इज एडिंग दैट, बट वो अगर ना भी रहे तो इट डजेंट मैटर, इट विल वर्क। तो कैन के क्वेश्चंस कभी भी आएंगे तो यू विल ट्राई इट फ्रॉम योर एंड ऑल्सो। ओके, ग्रेट। सो एक और क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज रिएक्ट डॉट क्रिएट रूट, कैन आई यूज रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर? कैन आई का क्वेश्चन का आंसर क्या है अगेन? ट्राई इट, इट विल ब्रेक योर कोड, देन you'll understand why you can't do that. तो आंसर इज नो, यू कांट। ओके, अगर काम नहीं करा तो दैट मीन्स यू आर नॉट फॉलोइंग सिंटैक्स, तो दैट्स व्हेन you understand that your code is wrong. Code suggestion, no, you don't use code suggestions and all. That is for teaching purpose I'm using, but you don't use it, any of those. You have to code it from your end. That's when you'll get habituated to it. ठीक है, all right. So don't ask me that question again. I'll not give you that. Okay, once you get accustomed to React, probably on the last day I'll tell you all the things. Advanced topic तब discuss करेंगे. ओके, एफ एच फोर में लिखना है तो यू विल चेंज दिस H1 to H4, एंड देन इट कन्वर्ट्स टू H4, एज सिंपल एज दैट। तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो आपको भी ये सब करना है। ओके, योर टास्क नाउ इज टू, लेट्स से, एक मिनट इसमें देखते हैं, हमारे पास एक टास्क होगा यहाँ पे। लास्ट में ही करते हैं, ओके ठीक है, थोड़ी देर से करते हैं, छोटा सा टास्क। ओके, 8:57, एंड एक 5-10 मिनट्स के बाद आई विल गिव यू अ स्मॉल ब्रेक विथ अ टास्क। ओके, ठीक है। तो you have a function which returns h4, जिसमें whatever text you pass as an argument दिखाई देगा। बेसिकली ये क्या होगा, ड्राई रन करते हैं। ठीक है, छोटा सा, लाइक विल डू अ क्विक ड्राई रन। ठीक है, ये मैसेज ऑफ गुड मॉर्निंग, एक फंक्शन आपने इन्वोक किया, मैसेज ऑफ गुड मॉर्निंग। ओके, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, H4 रिटर्न करेगा। तो वह H4 आ गया, और वो टेक्स्ट की जगह ये गुड मॉर्निंग को रिप्लेस हुआ जाए, गुड मॉर्निंग से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। तो इसकी जगह H4 रेंडर हो रहा है। सिमिलरली सेकंड केस में गुड आफ्टरनून है, तो वो आफ्टरनून रेंडर हो रहा है H4 के अंदर। थर्ड वाले में हेलो रेंडर हो रहा है। ठीक है, सो डिपेंड्स, आपको जितने बार इन्वोक करना है उतने बार इन्वोक करोगे। अभी ये क्यों हेल्पफुल रहेगा, कोई भी एक वेबसाइट ले लो। ओके, तो उसमें आपको सिमिलर काइंड ऑफ आइटम्स मिलेंगे। अभी देखो ये टेक्स्ट जो है ना, जो हवर करने पे रेड हो रहा है, दिस टेक्स्ट जो हवर करने पे रेड हो रहा है, राइट, इसको मैं, हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज हमें भी 20 टाइम्स लिखा गया है, राइट, ये स्टाइलिंग्स एंड ऑल।
क्या मेरे को 20 टाइम्स क्रिएट करने की जरूरत है? एक बार मैं एक फंक्शन बना लूं, जो एक टेक्स्ट रिटर्न करे, सक्सेस, जो टेक्स्ट मैं ना डायनामिकली पास करूंगा एंड उस पे सारे स्टाइलिंग लगा लूं, तो आई कैन रीयूज इट, करेक्ट? जैसे फंक्शंस रीयूज होते हैं वैसे ही मैं रीयूज कर सकता हूँ, राइट? फर्स्ट टाइम मैं ना सक्सेस स्टोरीज पास करूंगा, सेकंड टाइम आवर टीम, थर्ड टाइम करियर। तो मेरे को एक ही बार क्रिएट करना है, मल्टीपल टाइम्स रीयूज कर सकता हूँ, करेक्ट? ऑल राइट, सो थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं इसको, और थोड़ा स्टाइलिश बना सकते हैं हम लोग। ओके, रिएक्ट बोलता है कि जब कभी भी आपको इस तरह JSX रिटर्न कर रहे हो ना, अगर आपका फंक्शन JSX रिटर्न कर रहा है, क्लियरली मैं लिख देता हूँ, कंडीशन नंबर 1, फंक्शन विच रिटर्न्स JSX, इसको यू नो कंपोनेंट बोल सकते हैं हम लोग। ओके, फंक्शंस तो सारे ही हैं, करेक्ट? कैटेगराइजेशन देखो, सिंपल सी बात, अ, ठीक है, क्रिकेट तो सबको समझ में आ जाता है ना, राइट? तो ऑडियंस जो बैठे हुए होते हैं स्टेडियम में, ह्यूमन बीइंग्स है, राइट? एंड विराट कोहली, ह्यूमन बीइंग। बट कैटेगराइजेशन क्या हो जाता है वहां पे, टू नो स्पेसिफिकली मेंशन हिम, वी कॉल हिम क्रिकेटर, राइट? इंडियन क्रिकेटर, क्योंकि वो स्पेशल है, राइट? ही नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट, तो उसको स्पेसिफिकली हमने क्रिकेटर का टैग दिया वहां पे, राइट? वैसे ही फंक्शंस जो JSX रिटर्न करे ना, वो भी फंक्शन ही है, राइट? इट इज स्टिल फंक्शन, बट हम उसको क्या बुलाते हैं? कंपोनेंट्स बुलाएंगे। यू गेट माई पॉइंट? तो दिस इज अ कंपोनेंट, और जब कंपोनेंट होता है ना, ताकि इजीली आइडेंटिफाई कर सके, तो इंडियन क्रिकेटर क्या करता है? ब्लू जर्सी दे वो, राइट? मैन इन ब्लू करते हैं हम लोग इसीलिए। तो सिमिलरली, टू डिस्टिंग्विश विराट कोहली फ्रॉम ऑडियंस, सो वी गेव हिम अ ब्लू कलर का यूनिफॉर्म। तो टू डिस्टिंग्विश कंपोनेंट फ्रॉम फंक्शन, व्हाट डू? वी पुट कैपिटल लेटर, ऐसे मैसेज करके लिखेंगे। ओके, स्टिल अ फंक्शन, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फंक्शन, but it just returns JSX. That's why we are calling it component. And वो फंक्शंस को आप जैसे कैमल केसिंग ऐसे लिखते हो, उसकी जगह मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, इसको पास्कल केसिंग बोलते हैं। अगर टू लेटर है, फॉर एग्जाम्पल, मेरा ऐसे ये कैमल केसिंग हो गया मेरा नेम, राइट? अब्दुल जब्बार। अब इसको मैं पास्कल केसिंग में लिखना रहा तो हाउ डू आई डू? कैपिटल लेटर से शुरू करूंगा, ABDUL, एंड देन again second letter, फिर third letter, this. So this is Pascal casing. So whenever you write components, you write using Pascal case. Okay, now again, message capital कर दिया। Okay, everybody with me on this? कैपिटल यूज करना मैंडेटरी है। हाउ विल यू, अगेन वही तो मैंने बोला ना, विराट कोहली को कैसे पहचानोगे? वरना तो ऑडियंस में ही मिल जाएगा, राइट? उसको हमने ब्लू जर्सी दिया है स्पेसिफिकली, सो दैट उसको अलग प्रोटोकॉल मिले, बिकॉज वो प्लेयर है, राइट? क्रिकेटर, वो स्पेशल कैसे होगा फिर, राइट? तो हमने उसको जर्सी दे दिया ब्लू कलर का, टू आइडेंटिफाई कि ये कंपोनेंट है। वरना तो पता नहीं चलेगा ना, वो भी अगर वो ऑडियंस में बैठ जाएगा व्हाइट कलर का शर्ट पहन के मेरी तरह। दैट्स वाई। ओके, फाइन, ऑल राइट। ओके, एवरीबॉडी गॉट दिस? ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स,
which basically returns, you know, React element or JSX to be more precise. Okay, इसको सेम चीज अगेन, सेम चीज मैसेज ऑफ गुड मॉर्निंग, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यही सेम चीज इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ पे I'll just say और सिंपली यहाँ पे if I have to pass something, message, and let's say uh, message text equal to, और सिंपल लेट्स टेक वन मोर स्टेप। ओके, आपको ये इजीली समझाने के लिए मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। इसकी जगह इफ आई पुट एन ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट एंड यहाँ पे टेक्स्ट करके की वैल्यू इज गुड मॉर्निंग, सेकेंड वाले में विल हैव अ डिफरेंट टेक्स्ट, तो आई जस्ट चेंज इट टू टेक्स्ट एंड गुड आफ्टरनून। थर्ड वाले में विल हैव वन मोर, लेट्स कॉल द की एज टेक्स्ट, वैल्यू इज हेलो। तो यहाँ पे we will have some properties coming in, right? So properties dot text करके if I write, I'll get the same thing. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पास किया मैंने, फर्स्ट वाले में आर्गुमेंट उसका की टेक्स्ट था, वैल्यू गुड मॉर्निंग था, सेकंड में गुड आफ्टरनून था, थर्ड में हेलो था। ओके, तीन बार मैंने वो सेम फंक्शन इन्वोक किया, वी गॉट थ्री डिफरेंट टेक्स्ट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो। ओके, similar to how you pass an argument, I'm just passing an argument and it is returning, that's it, nothing specific about it। आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग की जगह मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूं, दैट्स इट। मेक सेंस? ओके, इसको प्रॉपर्टीज क्यों बुलाया? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बुलाऊंगा। इफ आई कॉल इट ब्ला, डज इट मैटर? इट वुड स्टिल रेंडर, राइट? सो आई कैन कॉल इट वॉट एवर आई वॉन्ट टू, आई कैन कॉल इट अब्दुल ऑल्सो, इसका नाम मैं अब्दुल भी रख सकता हूँ। इट वर्क द सेम वे, इट्स जस्ट अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट। सो इसको मैं प्रॉपर्टीज करके बुला लेता हूँ, व्हाट इज द बिग डील, राइट? यू शुड नो हाउ अ फंक्शन वर्क्स। ये रिएक्ट तो सेकेंडरी थिंग, बेसिक फंक्शन एग्जीक्यूशन अगर समझ में आता है तो दिस इज नथिंग। तो हमने एक फंक्शन इन्वोक किया, एक्सिक्यूट किया, कॉल किया, एवरीथिंग इज सेम, राइट? तो यहाँ पे तीन फंक्शंस इन्वोक कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट टाइम आर्ग्यूमेंट ये वाला ऑब्जेक्ट था, सेकंड वाले में ये वाला ऑब्जेक्ट था, थर्ड वाले में ये वाला ऑब्जेक्ट था। तो थ्री टाइम्स h4 is getting rendered with different different text. We change the message each time. Okay, all right. Now can we write prop directly? Okay, fine. The reason why I did, I'll explain. तो इसको ना, ये मैसेज को, this message can also be written as, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मैसेज टेक्स्ट इक्वल टू गुड मॉर्निंग अगेन। तो सेकेंड टाइम भी वही आ जाएगा, बट हाँ। सो लाइन नंबर 32 and line number 34 are basically same syntax. Actually, React में it says that you can even write it in this way. It gives you this facility to write this line number 32 in this way in React. Okay, but it is basically same. आप if you hover over it, उसके ऊपर ना, when you hover over it, you can see function message which has property, like same thing यहाँ पे भी आएगा, function message properties.
ओके, व्हाट इफ आई वांट मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, मेरे को एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट चाहिए। लेट्स से कलर ऑफ टेक्स्ट। ओके, तो मेरे को वो भी पास करना है। आई से रेड, सो प्रॉपर्टीज डॉट टेक्स्ट लिख दिया हमने। तो अभी प्रॉपर्टीज डॉट कलर ऑफ टेक्स्ट कर दूं तो वो रेड भी दिखाई दे रहा है, सी स्ट्रिंग रेड कलर के। एंड यहाँ पे कैसे लिखोगे? सेम चीज, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट में यू एडेड इट एज सेकंड आर्गुमेंट, तो हियर यू विल डू कलर ऑफ टेक्स्ट ब्लू, तो एक स्पेस होना चाहिए एंड इक्वल सिंबल होना चाहिए, एंड इट वर्क्स अगेन। सेम सिंटैक्स, you can even write it this way. Okay, so this is also valid React says के React का डॉक्यूमेंटेशन बोलता है कि आप ये लाइन नंबर 36 में जो कोड है उसको इस तरह से भी लिख सकते हो। एंड रिएक्ट में बेसिकली ये स्टैंडर्ड है, जो लोग रिएक्ट में लाइक एक्सपीरियंस डेवलपर्स होते हैं, दे काइंड ऑफ स्टार्ट राइटिंग इट इन दिस वे। रिएक्ट कोड बेसिकली इस तरह लिखते हैं, बट फंक्शनैलिटी वाइज सेम चीज है दोनों, लाइन नंबर 36 एंड लाइन नंबर 38। इज दैट पार्ट क्लियर? ये थोड़ा आदत आना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये वाला पार्ट क्लियर है ना? लाइन नंबर 36 एंड 38 आर बेसिकली सेम थिंग, फंक्शनैलिटी वाइज दोनों सेम ही है। डज इट मेक सेंस? Yes, HTML plus JSX is JavaScript is JSX. ठीक है, सो ऐसे लिख दिया हमने, राइट? यहाँ पे फॉर द सेकेंड वन गुड आफ्टरनून है ना ये, तो इसको गुड आफ्टरनून करके लिख देते हैं। टेक्स्ट कलर ग्रीन कर देते हैं इसका। थर्ड वाला ना, आई जस्ट से हेलो, एंड इसको रेड ब्लू ब्लू कर देते हैं इसको ग्रीन। बट बहुत कंफ्यूजिंग है, ये वाले निकाल देते हैं। ठीक है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। लाइन नंबर 38 भी निकाल देते हैं, लाइन नंबर 39 भी निकाल देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो लाइक दिस वर्क्स, तो सेम चीज है, बट यहाँ पे डायरेक्टली यू कैन राइट मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऐसे। एक आई कीप एज अ रेफरेंस, सो ताकि आसानी हो समझने में, somebody wants to, but हाँ, आई होप दिस मेक सेंस। या फिर निकाल ही देते हैं, इट्स फाइन। बट हाँ, कलर ऑफ टेक्स्ट ब्लू ग्रीन ऐसे लिख तो दिया है मैं, बट मेरे को प्रॉपर्टीज में दिखाना है ना कलर, मेरे को इसमें नहीं लिखना। मेरे को ये इसका चेंज करना है कलर। तो कैन आई डू स्टाइल इक्वल टू, ओके, तो फर्स्ट वाला ना इंटरपोलेशन में यू यूज टू इंडिकेट दैट इसके अंदर वी आर राइटिंग अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ये बताने के लिए ये बाहर वाला पेरेंथेसिस यूज किया है, कर्ली ब्रेसेस यूज किया है, सॉरी। यहाँ पे वी विल राइट अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ओके। और सिंपली इधर भी लिख सकते हो कॉन्स्ट स्टाइल ऑब्जेक्ट करके ऐसे यू राइट, विच इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। एंड अब लिख सकते हो, एंड यू कैन से कलर इज इक्वल टू properties dot color of text, and you can pass that javascript object here, style object करके। जैसे दिस ब्लू ग्रीन रेड कर देते हैं उसको, it will become red. This is how you style things, and yeah, there you go. You have created your first component, and hear my words very carefully. Everything in React is made of components. Okay, it's a smallest unit. जैसे बिल्डिंग का ब्रिक होता है ना, स्मॉलर यूनिट, इंट बोलते हैं उसको, राइट? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट।
पत्थर जो ईंट होता है ना, उसी तरह रिएक्ट एप्लीकेशन अगर एक बिल्डिंग है तो उसका ईंट कंपोनेंट है. ओके, सो एवरीथिंग इज मेड ऑफ स्मॉलर कंपोनेंट्स. एंड इफ यू ऑब्जर्व ओवर हियर, अगर इसकी ये एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. So this is a component. This is a component, 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 component. This is also a component. Again, this is a component, component, component. So everything in React is components. It's made of components, smaller, smaller, smaller components, right? तो वो ईंट को यूज करके दीवार बनाएंगे, दीवार को यूज करके घर बनाएंगे. वैसे ही we make everything using components in React. Okay. Can we not use element directly? This is valid and you can even do this. आप directly ऐसे pass कर सकते हो. This is also valid. But शुरू में confusion रहता है, तो इसलिए I wanted to show both the things. But हाँ, this is also valid. तो ऐसे directly लिखने पे people tend to ask, दो दो curly brace क्यों रहे, दो दो curly brace क्यों है. That's why I use this syntax to make it very clear that this second one is a object syntax. The first one is to indicate that we are going inside JavaScript. Make sense? All right. So एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे जनरली. तो सॉरी, const sample equal to, okay, color blue, whoops, color blue, age 20, something something, some random things I've added. ठीक है. अभी आई कैन डीस्ट्रक्चर दिस ऑब्जेक्ट, राइट. सैंपल में से अगर मेरे को कलर वाला प्रॉपर्टी निकालना है, एज वाला प्रॉपर्टी निकालना है, तो आई कैन डीस्ट्रक्चर एंड टेक आउट. कलर करने पे ए आ जाएगा, एज करने पे वो 20 को रेफर करेगा. एवरीबडी नो व्हाट अ डीस्ट्रक्चरिंग इज? या ऑल राइट. सेकेंड थिंग, इसको मैंने क्या बोला, आई कैन राइट एनीथिंग, ब्ला, कुछ भी लिख सकता हूँ. तो प्रॉपर्टीज को प्रॉप्स करके भी लिख सकता हूँ. यस, मैं इसको कुछ भी नेम दे सकता हूँ ना, राइट. सो आई डिसाइडेड टू नेम इट प्रॉप्स. डज एनीबडी हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दिस? Nobody has any objection. Very good. So here, if we come back to today's topic, okay, let's connect the dots. हाँ, ऐसे रखें. We starting with components and props. So yes, smallest unit that we have created, right? A component called message. So this is called component. एक UI का छोटा सा हिस्सा. तो यहाँ पे हमारे 3 कंपोनेंट बन गए पूरे. फॉर एग्जाम्पल, shape, where is shape? We used to have shapes. No, I'm not sure what happened to that. Anyways, acha, here we have. So this is one component, message ka. Second component, third component. So components, right? एक message component, second, third. So components, multiple components हो गए, right? एक ही दीवार नहीं, right? You can create multiple दीवार in your building. तो similarly यहाँ पे 3 components हो गए. But एक ही बार मैंने क्रिएट किया, राइट, मैसेज, एंड आई एम रीयूजिंग दैट कंपोनेंट.
ये मैसेज वाला कंपोनेंट मैंने एक बार क्रिएट किया, 3 बार इन्वोक करके रीयूज कर लिया। सो कंपोनेंट्स आर रीयूजेबल। क्या हम ये कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स आर रीयूजेबल? राइट, एवरीबडी अग्री विथ मी ऑन दिस? कंपोनेंट्स आर रीयूजेबल। एक हमने डिस्कस किया था कि पैस्कल केस व्हाइल राइटिंग कंपोनेंट्स, वो उसका जर्सी है। That's how you understand that it's a component. Okay, great. तो 3 कंपोनेंट्स हो गए हमारे। क्या हम अलग लाइक यू कैन हैव अदर कंपोनेंट्स आल्सो। अभी देखो एक और कंपोनेंट लेट्स से मैंने बना लिया फुटर करके, राइट, जो बस एक बेसिकली एक डिव है, कुछ भी हो सकता है, सम फुटर, एक और कंपोनेंट हो गया। को लेट्स से स्टाइल वेट 100%, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, color white, and padding 20 पिक्सल। एंड अगर ये कंपोनेंट मैंने ऐड कर दिया, कुछ रैंडम कंपोनेंट मैंने क्रिएट कर दिया फुटर करके, तो ये फुटर बन गया। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फुटर है ना, जिसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, टेक्स्ट वाइट है। तो उसी तरह हमने एक और फुटर बना लिया, वो भी एक कंपोनेंट हो गया हमारे यूआई का। नैव बार हो गया, वो भी एक कंपोनेंट हो गया, राइट। अगर सेम सिमिलरली एक और कंपोनेंट मैंने ऐसे बना लिया, लेट्स कॉल इट नैव बार। नैव बार का जो है ना बैकग्राउंड कलर जो है वाइट स्मोक, एंड कलर जो है ब्लैक या ग्रे, एंड इसको नैव बार करके लिख दिया मैंने। अच्छे, तो अगर मैं ये नैव बार भी इन्वोक कर लूँ, एट द टॉप एक नैव बार रहेगा, तो इसी वो नैव बार भी ऐड हो गया। बट why is navbar having border? Shouldn't have border. The background color, let's say blue, light blue, and color is gray. All right, so yeah, there you go. तो एक नैप बार भी ऐड हो गया टॉप में। You have these 3 text. Let's clear the annotations and you will see a better visible. Now try. ठीक है, तो इसमें फुटर एक कंपोनेंट हो गया, नैव बार एक कंपोनेंट हो गया, एंड ये मैसेजेस अलग कंपोनेंट हो गए, राइट। कंपोनेंट्स कैन बी रीयूज, आप मल्टीपल जगह भी सेम चीज को यूज कर सकते हो। एंड अगर आप if you have observed today's notes also, let's say, let me open today's notes. Where is it? Yeah, here it is. एक एग्जांपल लेते हैं, ट्विटर पेज, राइट। सो देखो, नेविगेशन एक कंपोनेंट हो गया, ये एक कंपोनेंट हो गया, ये साइड वाला बार यू माइट लाइक सेक्शन ये एक कंपोनेंट हो गया, व्हाट्स हैपनिंग ये वाला एक कंपोनेंट हो गया, ये सारा फीड एक कंपोनेंट हो गया, देन इसमें जो ट्वीट्स है वो भी एक कंपोनेंट हो गए। ओवरऑल ऐप भी एक बड़ा सा कंपोनेंट ही है, राइट, इफ यू थिंक अबाउट इट। तो दिस इज हाउ यू कैन डिवाइड योर एप्लीकेशन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स, राइट। ये कंपोनेंट कंपोनेंट, ये ट्वीट्स एक कंपोनेंट, ये वो जो हिस्सा है ना ये छोटा वाला, ये भी एक कंपोनेंट है। So that's how you call each of these as components. And अभी ये देखो, ये ट्वीट वाला जो है ना, वी आर रीयूजिंग इट। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ईच टाइम क्या चेंज होता है,
ये ट्वीट का टेक्स्ट चेंज होता है, राइट? Everything else is same. So you'll have a image, some image, you'll have some name, then there will be a tweet. So data change होता है, but everything else remains same, right? So data, data some information there, ये जो डेटा है ये चेंज होता है, बट ओवरऑल ये कंपोनेंट सेम ही रहता है, राइट? यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे अपने मैसेज वाले कंपोनेंट में भी 3 बार भी डेटा चेंज हुआ, मतलब ये टेक्स्ट चेंज हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, बट वो सेम ही कंपोनेंट रीयूज होता है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, यू सी ओवर हियर, मसाई स्कूल का अलग से ओपन करते हैं। ये बटन एक ही बार हम लोगों ने क्रिएट किया था जब हमने ये वेबसाइट बनाई थी। तो इसमें टेक्स्ट लाइक यू आर रीयूजिंग इट, 3 जगह हमने रीयूज कर लिया उसी को, राइट? सो ये जो कार्ड है ना, ये जो कार्ड दिख रहा है आपको, ये एक ही बार हमने क्रिएट किया, इसको हमने रीयूज कर लिया। डेटा कीप्स चेंजिंग, इसका टेक्स्ट कुछ और रहेगा, इसका टेक्स्ट कुछ और रहेगा, इसका टेक्स्ट कुछ और रहेगा, इमेज चेंज होगा, बट ओवरऑल कंपोनेंट इज सेम। आर्ग्यूमेंट में मैं डिफरेंट इमेज यूआरएल पास करूंगा, आर्ग्यूमेंट में मैं डिफरेंट टाइटल पास करूंगा, बट है तो वो सेम ही कार्ड, राइट? विच इज बीइंग रीयूज्ड। फंक्शन में भी तो वही करते हैं हम, राइट? ईच टाइम यू पास सेपरेट आर्ग्यूमेंट यू गेट अ डिफरेंट रिजल्ट। जैसे अपने पास एक फंक्शन है सम करके, राइट, जो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है ए बी करके। ये क्या करता है, हमेशा ए प्लस बी ही रिटर्न करता है। अब मैं वो ए बी में 10 और 8 पास करूंगा तो 18 आएगा। अगर उसकी जगह कुछ और नंबर पास करूंगा तो कुछ और रिजल्ट आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम डिफरेंट टेक्स्ट पास करेंगे तो वो वाला टेक्स्ट दिखेगा, यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट पास करेंगे तो कुछ और दिखेगा, बट वी आर यूजिंग द सेम कंपोनेंट, वी आर रीयूजिंग इट। हम यूज तो सेम ही फंक्शन इन्वोक कर रहे हैं, राइट? दोनों जगह, तीनों जगह। वी जस्ट चेंजिंग, वी आर जस्ट प्लेइंग अराउंड विद डेटा and we're getting different result. So this way you reuse components. Components are reusable in nature. That's what it means. And what you're passing as argument to components, यहाँ पे ये मैसेज में 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए थे हमने, राइट? ए बी यहाँ पे जैसे पास किया, इसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, राइट? आर्ग्यूमेंट्स, प्रॉपर्टीज, क्या क्या नाम है इसके? पैरामीटर्स। So when you define a function, इसको पैरामीटर बोलते हैं। बट वेन यू एक्चुअली पास द वैल्यू 10 8 करके, तब उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, करेक्ट? यस और नो? फंक्शन में ऐसे ही बुलाते हैं ना उसको। तो सेम चीज इसको ना, जब हम लोग पास कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज बुलाते हैं इसको, बस। ऑलराइट, वो प्रॉपर्टीज यूज किया हमने, दैट्स इट। सो दीज आर कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स, whatever we have covered in simple words. Okay, तो लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक। ओके, यहाँ पे इफ यू सी ओवर हियर, अगर आप नोट्स में जाओगे, if anybody is interested in learning in live session, and you should be, read this thing. You have to create a card करके एक कंपोनेंट बनाना है जिसमें 2 चीजें एक्सेप्ट होंगे, टाइटल, कंटेंट करके प्रॉपर्टीज की तरह एक्सेप्ट करना, और आपको डिस्प्ले करना है वो। ओके, तो ये एक बार ट्राई करना, ये 3 चीजें। ओके, आई गिव यू 5 मिनट्स एंड उसके बाद वी विल कंटिन्यू। Okay, so it's 9:28. We'll meet at 9:34. All right, great. See you in 5 minutes then. All right, any queries? You guys have any queries?
अंडरस्टूड. ओके, ग्रेट. तो लेट्स डू अ स्मॉल रीवर्क ऑन दिस. ओके, थोड़ा सा और रीवर्क करते हैं. ग्रेट. तो एक मैसेज नाम का कंपोनेंट है अपने पास, फुटर नाम का एक कंपोनेंट है, नैवबार नाम का एक कंपोनेंट है. करेक्ट. और ये एलिमेंट रेंडर कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है. ओके. मैंने एक और कंपोनेंट क्रिएट किया, यू नो. सो लेट्स कॉल दिस सबका पापा, सारे कंपोनेंट्स का पापा. ओके. सबसे बड़ा कंपोनेंट ये, मतलब सारे कंपोनेंट्स का पापा ये पेरेंट कंपोनेंट. ओके. इसको हम लोग बाद में पेरेंट कंपोनेंट बुलाने लगेंगे. फॉर द टाइमिंग लेट्स कॉल इट दिस. ओके. तो लेट्स से रिटर्न में इफ आई पुट दिस यहाँ पे, एंड इसको इफ आई इन्वोक हियर, डज इट वर्क? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ये एलिमेंट की जगह है, राइट. ये जो था, राइट, दिस इज व्हाट वी आर रेंडरिंग, राइट. सो सारे कंपोनेंट्स का पापा करके एक फंक्शन बना ली, राइट, विच इज एक्चुअली द केस. तो इसके चिल्ड्रन है सारे कंपोनेंट्स. नैवबार एक कंपोनेंट है जो इसका सारे कंपोनेंट्स, वॉट एवर हिज इन नेम, लेट्स कॉल इट पेरेंट कंपोनेंट में भी. बहुत ऑड सा लग रहा है वो नाम. तो पेरेंट कंपोनेंट के ये सारे बच्चे हैं, राइट. नैवबार एक बच्चा है, चाइल्ड मैसेज एक कंपोनेंट है, फूटर एक कंपोनेंट है. करेक्ट. एंड हम जब इन्वोक करेंगे तो ये सारी चीजें रेंडर हो जाएंगे. यस और नो? ओके. और सिंपल से इसको मैं डायरेक्टली एप्लीकेशन भी तो बुला सकता हूँ, बिकॉज ये एक एप्लीकेशन है, राइट. मेरा एक एप्लीकेशन, मैंने एक ऐप बनाया, तो मैं इसको एप्लीकेशन भी बुला सकता हूँ. यस और नो? मैं तो कुछ भी बुला सकता हूँ, राइट, इसको. या फिर मैं प्यार से उसको ऐप बुलाता हूँ, जैसे हम लोग एप्लीकेशन नहीं बोलते ना, मोबाइल ऐप करते हैं, तो मैं उसको ऐप बुलाने लगता हूँ. ऑल राइट. ग्रेट. तो नाउ ऐप भी तो एक कंपोनेंट ही है ना, तो इसको भी हम इस तरह लिख सकते हैं, राइट. ऐसे इन्वोकेशन ऐसे भी कर सकते हैं, राइट. ये बस नीचे रख रहा हूँ कुछ देर के लिए. तो हो गया, आपका एक एप्लीकेशन कंप्लीटली बन गया. दिस इज हाउ यू राइट कोड इन रिएक्ट एक्चुअली. इसको कंपोनेंट बोलते हैं, पेरेंट कंपोनेंट और मेन कंपोनेंट. सो जिसके सारे चाइल्ड कंपोनेंट्स होते हैं. नैव बार एक कंपोनेंट हो गया. सो एसेंशियली योर रिएक्ट इज नथिंग बट बंच ऑफ कंपोनेंट्स. एक कंटेनर में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो वो कंपोनेंट से आपका एप्लीकेशन बन गया. तो इट्स अ लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स. दैट्स व्हाट योर एप्लीकेशन इज. वो मेन जो ऐप है वो भी एक कंपोनेंट ही है, इसको पेरेंट कंपोनेंट बोलते हैं. ऑलराइट. अगर इसको आप विजुअलाइज करोगे, मतलब इसको अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा. करेक्ट. तो लेट्स से, चलो ड्रॉ करते हैं ऐप जो हमारा मेन कंपोनेंट है. Oops. इसके थ्री चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं. फोर है, नैव बार, मैसेज, मैसेज फुटर, ऐसे. ओके. तो एक बार के लिए हम लोग नैव बार लिख लेते हैं. एक हो गया मैसेज कंपोनेंट, एक हो गया फूटर कंपोनेंट. ओके. तो
ऐप के एक, दो, तीन, आई मीन ये 3 बार भी लिख सकते हो बिकॉज मैसेज 3 बार आता है ना, राइट? तो 3 कंपोनेंट भी लिख सकते हो, बट इससे आपको आइडिया आ जाएगा, राइट, व्हाट वी आर डूइंग। तो ऐप इज द मेन कंपोनेंट जिसके 3 बच्चे कंपोनेंट है। nav बार एक बच्चा कंपोनेंट हो गया, मैसेज एक बच्चा कंपोनेंट हो गया, फुटर एक बच्चा कंपोनेंट हो गया, राइट? तो इसको कंपोनेंट हायरार्की बोलते हैं। कौन सा बड़ा कंपोनेंट है, कौन किसका चाइल्ड कंपोनेंट है, ऐसे एक ट्री डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट? ऐप अपना पेरेंट कंपोनेंट है जिसके 3 चाइल्ड कंपोनेंट्स है बेसिकली। एक हो गया नैपर, दूसरा हो गया मैसेज, तीसरा हो गया फुटर कंपोनेंट, राइट? तो इस तरह यू कैन विजुअलाइज कंपोनेंट हायरार्की इन रिएक्ट। डज इट मेक सेंस? सो पेरेंट कंपोनेंट विच इज ऐप हियर, राइट, जो इंफॉर्मेशन चाइल्ड कंपोनेंट को जा रहा है, मैसेज नाम के एक चाइल्ड कंपोनेंट को 2 इंफॉर्मेशन जा रहे हैं, टेक्स्ट, कलर ऑफ टेक्स्ट करके। तो ये सारे प्रॉपर्टीज बुलाते हैं हम लोग इसको, सिंपल एज दैट। ठीक है? तो ये रिएक्ट कंपोनेंट आर्किटेक्चर करके ये जो है ना, ये उसी के बारे में डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे, राइट? हाउ you know your application basically is a list of components basically। ये वाला बड़ा रहेगा थोड़ा, यहाँ यूज करेंगे, राइट? so this not this second, so this is what component architecture basically। component hierarchy मतलब which will be your parent component, which will be your child component, how items, how some information can be passed from parent component to child component। सो ये वो ट्विटर का एग्जांपल जो अब मैंने बताया था ना, तो यूज करके दे आर बेसिकली डिस्प्लेइंग द सेम थिंग है ना, हाउ यू कैन डिवाइड इट इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स। तो देखो अभी इसको भी हाउ दे आर डिवाइडिंग स्मॉलर स्मॉलर कंपोनेंट्स। ये एक कंपोनेंट हो गया ऐसे, इट्स मेड ऑफ अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स बेसिकली। ऐसे यू कैन ड्रॉ कंपोनेंट ट्री एंड अंडरस्टैंड इट बेटर। नेविगेशन यहाँ पे आ गया था, करेक्ट, ये वाला नेविगेशन हो गया, ये फीड हो गया, ये वाला साइड बार हो गया। एंड उसी में ट्वीट में what all you have, tweet में you have an avatar, you have a title, like handle, you have a likes wala which is another component, you have this favorites which is a retweet option which is another component। ऐसे you can have multiple components as like child components to even components। तो ऐसे component tree draw करने लगोगे ना, each time you basically build a small application। अगर आप एक ट्री ड्रॉ कर लोगे इस तरह का, इट बी easier for you to understand ये कोड कैसे फ्लो हो रहा है। डज दैट मेक सेंस? ओके, ग्रेट। एक और एग्जांपल देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। ओके, हम एक और एप्लीकेशन, छोटा सा एप्लीकेशन बनाते हैं, स्टैटिक पेज, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। एंड ये सारे चीजें निकाल देंगे से। ये लास्ट के 2 लाइन तो स्टैंडर्ड है, तो विल कीप इट दैट वे ओनली। ओके, रूट एलिमेंट एंड वो ऐप कंपोनेंट रेंडर करेगा रूट एलिमेंट। तो ये ऐप कंपोनेंट को भी हम लोग एक स्टैंडर्ड कर देते हैं, फंक्शन ऐप विच विल रिटर्न बाय डिफॉल्ट ऐप करके रख देते हैं। okay, दिस विल बी आवर बॉयलर प्लेट कोड फ्रॉम नाउ ऑन। एंड इसको वी विल ओपन इट विथ लाइव सर्वर। ओके, कुछ दिन के लिए, कल तक के लिए एटलीस्ट, इसको हम लोग बॉयलर प्लेट कोड मान के चलेंगे, मतलब टेम्पलेट कोड ओजे में जो आता है ना, बेसिक सा कोड,
तो ऐसे मान के चलेंगे. ओके, so let's say return to editing, and I hope you guys have copied this. Quickly on remove. So yeah, this and settings and published as code preview. Okay, setting. Okay, so एक template की तरह you can still use it. Okay, from now on. Basically, app component, app करके एक text दिखाया है, and that is what you are seeing over here. Okay, all right. चलो, I'll create some components. Okay, मेरे application में or let's just take a simple example. Okay, uh, let's call this component main. Okay, return कुछ अभी रिटर्न नहीं कर रहा है फॉर द टाइमिंग, ऐसे ही देते हैं. एंड आई से लेफ्ट साइड बार, ट्विटर में जैसे लेफ्ट साइड बार होता है ना, वैसे क्रिएट करेंगे. ये वाला लेफ्ट साइड बार, लेफ्ट साइड बार रिटर्न, विल जस्ट कॉल इट लेफ्ट साइड बार. ओके, ये जो मिडिल सेक्शन है फंक्शन, इसको फीड सेक्शन बोलते हैं ना, फीड, इसको फीड लिख देते हैं. रिटर्न डिव फीड करके. ओके, I'll create one more function, one more component to be more precise, right side bar करके I'll create it, and this is okay. So ये main में I'll put left side bar, I'll put feed. Okay, I'll put right side bar, and ये main जो है ना, if I start displaying over here, तो वो तीन चीजें दिखने लगेंगी, राइट? तो लेट्स से open with live server, this will be it. हाँ, left side bar, feed, right side bar, right? We're displaying one below the other, but ठीक है, for the time being, let's keep it this way. Everybody with me on this? ऐप फंक्शन कहाँ इन्वोक कर रहे हैं हम लोग? यहाँ पे लाइन नंबर 53. ऐप ही तो वो सारा एप्लीकेशन रेंडर करेगा, राइट? तो हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं पेरेंट. ओके, ठीक है. सो नाउ इंटरेस्टिंग थिंग, इसमें नैप बार भी हो सकता है, करेक्ट? सो हमारे पास नैप बार भी हो सकता है, तो हम लोग वो भी क्रिएट कर लेते हैं. अब थोड़ी देर के लिए विल नॉट क्रिएट नैप बार. अभी एक और चीज बता देता हूँ इसमें. लेट्स से ये लेफ्ट साइड बार हमेशा लेफ्ट में ही होना चाहिए. यहाँ पे एक, अगर हम सारे पेज को इफ यू डिवाइड इनटू स्मॉलर रेशियो, यू नो, इफ यू डिवाइड इनटू रेशियोस, इसको 1 दे सकते हैं, इसको लेट्स से 3 दे सकते हैं, इसको अगेन 1 दे सकते हैं, राइट साइड बार को 1:1 रेशियो, या 1:1 और 1:3:1, कुछ भी दे सकते हैं, राइट? तो अगर मेरे को एक लेआउट ड्रॉ करना होता, तो आई वुड हैव ड्रॉन समथिंग लाइक दिस, के फंक्शन लेआउट रिटर्न, ठीक है, एक div रख देते हैं. फॉर द टाइम बिंग आई जस्ट कीप इट एज अ div.
थोड़ी देर के लिए ये लेआउट पे कंसंट्रेट करते हैं, करेक्ट। तो स्टाइल, डिस्प्ले, फ्लेक्स, फ्लेक्स, डायरेक्शन रो, फ्लेक्स। ओके, फ्लेक्स वन लिखते हैं इसको। एंड अभी मैं मेन नहीं लेआउट डिस्प्ले करूंगा, ओके ठीक है, थोड़ी देर के लिए। एंड इसको लेट्स कॉल इट फ्लेक्स टू और फ्लेक्स थ्री। एंड स्टाइल फ्लेक्स वन, ठीक है, कुछ भी। लेट्स पुट देम एज अ डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स। थोड़ी देर के लिए समझने के लिए विल पुट डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स। लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, लाइट पिंक। ओके, राइट, यू अंडरस्टैंड वेयर आई एम गोइंग विद दिस, बट ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं। फ्लेक्स वन, फ्लेक्स टू, फ्लेक्स थ्री, ये तो पता ही होगा, बट इफ इन केस यू डोंट नो, बस मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, बाद में आप नो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में एक बार चेक कर लेना। ये जो लाइन नंबर 47 में एलिमेंट है, मैं बोल रहा हूँ कि वो एक फ्रैक्शन लेना चाहिए जगह। लाइन नंबर 48 में जो एलिमेंट है वो तीन फ्रैक्शन लेने का। लाइन नंबर 49 में जो है वो एक फ्रैक्शन लेगा। तो ये टोटल 1 2 3 4 फ्रैक्शंस में स्क्रीन को डिवाइड कर देगा। एंड फर्स्ट वाले को एक फ्रैक्शन देगा, सेकंड वाले को तीन फ्रैक्शन देगा। 3 + 1 + 1 5 फ्रैक्शंस में डिवाइड करेगा। इसको तीन हिस्से दे देगा, इसको एक हिस्सा, उसको एक हिस्सा, जमीन का एक हिस्सा इसको दिया, जमीन का एक हिस्सा इसको दिया, खुद तीन हिस्सा हड़प लिए उसने। इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, प्लीज रीड फ्लेक्स। उतनी इससे सिंपल तो और कोई भी नहीं बता सकते। आई एम टेलिंग यू, ओके। तो you're using flex property to divide it into smaller fractions, okay, ठीक है, सिंपल। ऑल राइट। तो लेआउट्स जो है ना, एक फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन, तीन फ्रैक्शन, ऐसे डिवाइड कर दिया हमने, राइट। इसको तीन फ्रैक्शन, वन फ्रैक्शन, वन फ्रैक्शन। नाउ एवरीबॉडी, डू यू गॉट दिस पॉइंट? इतना समझ में आ गया ना? ऑल राइट। तो ये जो मेन है ना, ऑल राइट, ये वन की जगह वन नहीं रखूंगा मैं। ये लेफ्ट साइड बार आप, व्हाट इफ आई पुट दिस लेफ्ट साइड बार हियर और समथिंग लाइक दैट, ओके। तो या फिर ग्रिड करके एक होता है, राइट, यू हैव डिस्प्ले ग्रिड, डू यू रिमेम्बर ग्रिड? ऐसे भी लिखते हैं ना, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, 25%, 50%, 25%, ऐसे भी रख सकते हैं हम लोग। इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद फ्लेक्स, तो ग्रिड भी उस ऐसे यू कैन पुट 1 2 3। एंड say if I put some diagram here, 25%, 50%, 50% दे दिया हमने। तो ये जो div है इसके अंदर, इसमें फर्स्ट वाले को 25% मिलेगा, ओके। ये सेकंड वाले को, लेट्स से यहाँ पर नेम्स लिख देते हैं इसको, टॉम, ओके, बेन, हैरी,
तो टॉम को 25% मिल गया, बेन को 50% मिला, हैरी को 25% मिला। अब इतना तो सिंपल है। ओके, ये तो समझ में आ रहा है ना? दिख दिख रहा है क्लियरली अभी? right? ठीक है। बिकॉज मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, सो दैट पीपल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो ठीक है। यहाँ पे इफ आई रिमूव दिस, ठीक है, और एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फिर इस पे आते हैं। आई कम बैक टू दिस, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, तो थोड़ा 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 क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं। लेट्स से ये भी निकाल दिया हम लोगों ने, ऐसे ही वी विल कीप पू नाम का एक कंपोनेंट बना लिया। ओके, एक फंक्शन है पू करके। ओके, सो वो एक डिव लेगा, एंड इसमें ना वी विल डिस्प्ले, ओके, यहाँ पे आई जस्ट से props, ओके, and I'll write props dot children, and मैं बोलूंगा कि this should have a padding of 100 pixel and background color of red, ओके, और border 1 pixel solid red, ओके, तो और लेट्स से 10 पिक्सल सॉलिड red, ऐसा बॉर्डर बना के। ओके, एक कंपोनेंट है जिसको थोड़ा सा स्टाइलिंग कर दिया मैंने, 100 पिक्सल का पैडिंग दे दिया, 10 पिक्सल सॉलिड रेड करके लिख दिया। जस्ट मेरे को इतना बताओ, लाइन नंबर 54 से लाइन नंबर 68 तक क्लियर है सबको? ओके, एवरीबडी क्लियर विद दिस? ठीक है। इसमें कुछ चिल्ड्रन नाम का प्रॉप लिख रखा है मैंने, पता नहीं क्या है, बट हाँ देखते हैं। यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बाय द वे, कंपोनेंट को ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, जैसे हम लोग एक डिव ओपन करके क्लोज करते हैं, राइट? कोई भी HTML एलिमेंट ऐसे लिखते हैं, राइट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट करके। वैसे ही कंपोनेंट भी आप ऐसे कर सकते हो, बाय द वे इस तरह लिख सकते हो। ठीक है। अभी इसमें, इसके अंदर मैं अगर 23 लिखूं, कुछ भी रैंडमली मैंने लिख दिया, तो वो 23 यहाँ पे, इफ यू डू कंसोल डॉट लॉग ऑफ प्रॉप्स, अगर आप प्रॉप्स यहाँ पे चेक कर लोगे, तो आपको क्या दिख रहा है चिल्ड्रन में? तो वो कंपोनेंट के प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, प्रॉप्स एक बेसिकली ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, राइट, जिसमें बहुत सारे एक प्रॉपर्टी जा रही है चिल्ड्रन करके 23। अगर ये मैं 23 की जगह कुछ और लिख दूं यहाँ पे, समथिंग एल्स, क्या हो गया? चिल्ड्रन, अब ये प्रॉप्स प्रॉप्स बेसिकली एक ही है, चिल्ड्रन समथिंग एल्स जा रहा है। अगर मैंने कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड कर दी, लेट्स से कुछ भी कर दिया मैंने, कुछ टेक्स्ट ही पास कर दिया, या फिर सम प्रॉपर्टी करके कुछ तो भी पास कर दिया, सम टेक्स्ट, यू सी प्रॉप्स अभी कैसे दिख रहा है? सम प्रॉप तो वैसे भी पास हो रहा है सम टेक्स्ट करके। ये जो मैंने इसके पेट में लिखा था, ये कंपोनेंट के पेट में समथिंग एल्स करके, वो चिल्ड्रन नाम के एक की वैल्यू पेयर, की है चिल्ड्रन, वैल्यू इज समथिंग एल्स। तो ये चिल्ड्रन नाम का एक की खुद ब खुद क्रिएट कर रहा है, और उसके में वैल्यू जा रहा है समथिंग एल्स। तो इसमें मैं कुछ भी पास करूं, ये इसके पेट से, राइट, यहाँ पे मैं लेट्स से H3 लिख दूं, इफ आई पास एन H3 एंड जस्ट से, व्हाट डू आई से,
It's too late now. Do you see this? वो रिएक्ट एलिमेंट कंप्लीटली कहा कैसे पास हो रहा है? सारा रिएक्ट एलिमेंट ही पास हो गया चिल्ड्रन की तरह। अच्छा, ठीक है। एक और फंक्शन बना दिया मैंने बार करके, सम रैंडम टेम्पलेट फंक्शन कुछ भी। एंड नाउ ये कंपोनेंट अगर मैं इसके अंदर दिखाने लगूं ऐसे करके, सी वो बार नाम का वो कंपोनेंट अवेलेबल है। तो मेरे को पता चला कि अगर मैं कंपोनेंट इस तरह के सिंटैक्स से लिखूं एंड उसके पेट में अगर कोई और कंपोनेंट पास कर दूं, तो जैसे प्रॉपर्टीज, हमको प्रॉप्स डॉट चिल्ड प्रॉप्स डॉट सम प्रॉप करके लिखने पे मेरे को जब जैसे ये प्रॉपर्टी मिलती है, प्रॉप्स डॉट सम प्रॉप करूंगा तो ये प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर इसकी जगह एक और क्लास नेम करके लाइक कुछ भी समथिंग एल्स, तो वो भी मिल जाएगा समथिंग एल्स। इट कैन बी अ बुलियन, राइट? कुछ भी डेटा टाइप पास कर सकते हो बाय द वे। आप ना नंबर भी पास कर सकते हो, H23। आप ना एरे भी पास कर सकते हो एज ए प्रॉपर्टी। सी, मैंने एक एरे पास कर दिया। आप ना एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, सम सैंपल ऑब्जेक्ट। सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स आप वैसे भी पास कर सकते हो, राइट? सारे अवेलेबल है। एज हो गया, अरे हो गया, राइट? बट ये पेट के अंदर इफ यू आर पासिंग समथिंग, दैट विल बी अवेलेबल एज अ स्पेशल प्रॉपर्टी ना। जैसे अगर आप चिल्ड्रन करके लिख के कुछ कंपोनेंट ही पास कर देते, एक कंपोनेंट बार करके पास कर देते, तो उस तरह से पास हो रहा है वो, राइट? जो यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है आपको प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन करके डायरेक्टली अवेलेबल हो रहा है वो एंटायर कंपोनेंट इटसेल्फ। तो दिस इज स्पेशल प्रॉपर्टी, ओके? वो उसका थोड़ा सा स्पेशल है बिकॉज वो सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट? तो इसको स्पेशल प्रॉप बोलते हैं, प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। ये आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कंपोनेंट के पेट में ऐसे रख दोगे तो यू कैन एक्सेस इट बाय डूइंग प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन। प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन करके आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे उसको। अगर कुछ और नाम देगे आप, चाइल्ड, चिल, वो सब नहीं समझ में आएगा बिकॉज वो रिएक्ट से ले रहे हो, राइट? तो एग्जैक्टली चिल्ड्रन करके ही पास करोगे तो आपको ये इलेमेंट, ये कंपोनेंट एक्सेस मिल जाएगा। मेक सेंस? अभी आई कनेक्ट द डॉट, मैं क्यों बोल रहा था ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आई कनेक्ट द डॉट। तो these are the different kinds of props that you'll generally see. Now, coming back to topic, अभी ये बार फू वाला सब सीन निकाल देते हैं यहाँ से, हमारे वाले लाइव एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ठीक है, ये लेआउट है। यहाँ पे ये टॉम डिक एंड हैरी है। ओके, ठीक है। तो वापस हम इसको यहाँ पे दिखा देते हैं एक सेकंड के लिए कैसे दिखता है। ठीक है, ये टॉम को एक हिस्सा मिल गया 25% का, 50% इसने हड़प लिया। बेन ने, हैरी ने ना 25% ले लिया। ठीक है। अभी देखो। ओके, सो यहाँ पे लेआउट क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर, नो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ लेआउट? ओके, एंड लेआउट के पेट में जो भी होगा प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन करके यहाँ पे रख सकता हूँ।
तो उसके पेट में जो भी आएगा इसके अंदर आ जाएगा, लाइन नंबर 47 में। तो यहाँ पे लेआउट करके क्या मैं ये तीन रख दूं यहाँ पे? तो लेफ्ट साइड बार 25% ले लिया, बेन की जगह 50% जो फीड ने ले ली, और वो हैरी का 25% राइट साइड बार ने ले लिया। डज इट मेक सेंस नाउ? तो बन गया आपका यूआई। इस तरह से कोड करते हैं रिएक्ट में। एक छोटा सा सैंपल दे दिया। तो अगर नैव बार रहेगा तो वो कहाँ पे आएगा? वो टॉप में आ जाएगा, राइट? तो एक और कंपोनेंट है नैव बार करके, तो वो नैव बार भी दिखा देते हैं यहाँ पे ऐसे, नैव बार। एक और कंपोनेंट है फुटर करके, जो सबसे लास्ट में होता है, राइट? फुटर। तो वो फुटर भी क्रिएट कर लेते हैं। तो ये टॉप में नैव बार आ गया। उप्स, ये नीचे फुटर आ गया। तो आपका ट्विटर बन गया बेसिकली, नैव बार साइड बार फुटर। बस स्टाइलिंग एंड कंटेंट चेंज करना है तो कंप्लीटली आप ही बना सकते हो रिएक्ट यूज करके ट्विटर। सो अभी आप अगर नोट्स देखोगे, इफ यू सी द नोट्स, छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया था यहाँ पे, जैसे आपको लाइक सेम थिंग यहाँ पे भी वैसे बेसिक एग्जांपल मिल जाएगा। नैव बार, साइड बार, मेन, फुटर। इस तरह से यू कुड डिवाइड इट इनटू स्मॉलर कंपोनेंट। और जो चिल्ड्रन प्रॉप्स के बारे में मैंने अभी अभी बात की, सी चिल्ड्रन प्रॉप्स इन रिएक्ट कंपोनेंट, तो पेज लेआउट करके हमने जो यूज किया था। मेक सेंस? एक लास्ट टॉपिक है कंडीशनल रेंडरिंग, कंडीशनल स्टाइलिंग, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बट इतना समझ में आ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, कैन यू रिपीट दिस लेआउट? चलो एक बार हम ट्री स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर लेते हैं ना, समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐप सबसे पापा पेरेंट, सबसे पापा, सबका बाप बेसिकली, ये सारे जो कंपोनेंट्स है सबका बेसिकली मेन कंपोनेंट ऐप है। तो ऐप से शुरू करते हैं। ऐप, ऐप के कितने बच्चे हैं? नैव बार है, फुटर है, लेआउट है। ओके, नैव बार, लेआउट, फुटर। लेआउट के अंदर ही यू हैव मल्टीपल चाइल्ड कंपोनेंट्स, लेफ्ट साइड बार, फीड, राइट साइड बार। तो ऐसे भी डाल सकते हैं उसको। इस सबको एरो से कनेक्ट कर देंगे। हो गया आपका लेआउट। ये कंप्लीट आपका फ्लो रहेगा ना। ऐप के अंदर नैव बार रहेगा, लेआउट रहेगा, फुटर रहेगा। लेआउट के अंदर आपको लेफ्ट साइड बार मिल रहा है, फीड मिल रहा है, राइट साइड बार मिल रहा है। अगर इसके भी अगर चाइल्ड कंपोनेंट्स होंगे तो वो इस तरह आएंगे। That's how you can draw component tree and understand it. So your React application is nothing but group of components, group of child components, basically, to be more precise. Okay.
ऑल राइट, तो एक और स्मॉल टॉपिक है, वो भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, देन विल रैप इट अप, ओके। चलो, फॉर द टाइम भी मैं ये यहीं पे रख देता हूँ। लेट्स से इसी में एक कंपोनेंट है फुटर करके, ओके। फुटर पे हम लोग थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग के रिलेटेड एंड कंडीशनल स्टाइलिंग के रिलेटेड। फुटर में ना मेरे को लेट्स से कुछ बताना है, नो थीम होगा कुछ, लाइट या डार्क थीम हो सकता है, ठीक है। एंड उस हिसाब से मैं बस, मेरे को बस ये बताना है यहाँ पे, ओके। तो इफ आई पुट थीम, तो आई सी दैट इफ द थीम इज डार्क, मेरे को वो पे डार्क दिखेगा, यस। ये सारे कंपोनेंट 2 सेकंड के लिए निकाल देते हैं। तो सिंपल एक फुटर है, फुटर नाम का कंपोनेंट, जहाँ पे थीम आ रहा है, इट कैन बी लाइट, इट कैन बी डार्क, ठीक है। इतना तो समझ में आया, लाइन नंबर 46 से 58 तक। परफेक्ट। तो यहाँ पे इफ आई वांट टू से कि इफ थीम इज इक्वल टू लाइट, यू नो, मेरे को कुछ और दिखाना है, मेरे को कुछ इस तरह दिखाना है कि फुटर कलर इज वाइट, ऐसे करके बताना है। एल्स मेरे को ये डिव बताना था एक्चुअली, डिव फुटर कलर इज ब्लैक, या तो either it shows footer color is black, or if it is light, we want to show footer color is white। if else statement use करके I can do something like this, yeah। थीम के पास I just wrote light, तो वो अगर लाइट है थीम, तो it shows this, otherwise it shows this। this is one way of rendering, right? कंडीशन के हिसाब से we are rendering this और rendering this। या तो हम ये रेंडर करेंगे कि फुटर कलर वाइट करके, या फिर ये रेंडर करेंगे। अच्छा, दिस वन यू आर आस्किंग, इट्स ट्रिपल इक्वल टू सिंबल, इक्वल 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 ऐसे, तो ट्रिपल इक्वालिटी सिंबल है वो, ठीक है। यहाँ पे भी इफ यू सी, यू नो, वही सिमिलर एग्जांपल यूज किया है बल्ब का, बट हाँ ठीक है, इस सिंपल से एग्जांपल से हम लोग वो समझा देंगे। ये तो समझ में आ गया, राइट? बेस्ड ऑन अ कंडीशन, कंडीशन क्या है? थीम, इज इट लाइट और डार्क, ट्रिपल इक्वालिटी सिंबल से हम लोग एक कंडीशन लिख दिए एंड चेक कर रहे हैं कि अगर वो लाइट है तो ये दिखाएंगे, अगर डार्क है तो ये दिखाएंगे। सो लेट्स से रैंडमाइज करते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। राइट फंक्शन टू रिटर्न नंबर बिटवीन 1 and 10, फंक्शन रिटर्न नंबर, ये जरूरी नहीं है ऐसे, मैं बस कर रहा हूँ बस, मैप डॉट रैंडम प्लस 1, ये फंक्शन ना इट विल रिटर्न सम रैंडम नंबर, ठीक है। तो
रैंडमाइज करते हैं फॉर एग्जाम्पल। फुटर में अभी कलर वलर कुछ नहीं, बस बेसिक सा एक कॉन्स्ट नंबर आएगा, राइट। सो रिटर्न नंबर करके, अगर नंबर 5 से कम है तो हम लोग ये टेक्स्ट रिटर्न करेंगे कि नंबर इज लेस देन 5, एल्स हम लोग कुछ और नंबर इज ग्रेटर देन 5 रेंडर करेंगे। फर्स्ट टाइम हमने जब किया, नंबर इज लेस देन 5 आया। इसे इट कीप्स चेंजिंग, एंड आप देख भी सकोगे नहीं, नंबर भी देख पाओगे, राइट। तो लेट्स से यहाँ पे इफ आई राइट num, then you'll be able to see the number also, num नंबर 7 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन। अगर फिर मैं रीलोड करूंगा तो नंबर 8 ग्रेटर देन 5, नंबर 9 ग्रेटर देन 5, नंबर 2 लेस देन 5। तो you're getting my point, based on a condition we are rendering one thing or the other। ओके, इतना तो समझ में आया। इन React you can either do if else condition, but there is a better way। ये if else की जगह कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं आप, wherein you will just say return num less than or equal to 5। ओके, ट्रू और फॉल्स आएगा ना ये कंडीशन। तो if the condition is true, you will display this text, the condition is false, you will display this text। so there are multiple ways of doing conditional rendering, it's not like if else से भी कर सकते हो, ternary operator से भी you could do this। I mean, different ways of doing the same thing, but just saying what a conditional rendering is. Based on a condition, you are either rendering this or rendering this। That's what a conditional rendering means। समझ में आया? That's all. That's what a conditional rendering. Based on a condition, you are rendering one thing or the other। Make sense? ठीक है। So same thing, conditional styling। तो मैं बोलूंगा कि color text color should be, how styling भी उस तरह से यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है तो मैं बोलूंगा कि कलर शुड बी इफ num लेस देन और इक्वल टू 5। अगर ये ट्रू हुआ तो रेड कलर में बताएंगे, वरना ग्रीन कलर में बताऊंगा। तो स्टाइल्स लिख लेते हैं, स्टाइल इक्वल टू स्टाइल्स, स्टाइल्स स्टाइल्स। तो वो ग्रेटर है इसीलिए इट शोइंग इन ग्रीन कलर, जब कम हो जाएगा इट विल शो इन रेड कलर। इफ यू चेंज द नम लाइक रीलोड करने पे डिफरेंट नंबर आएगा, देन इट चेंजेस द कलर। So based on a condition, one condition, you're styling it differently. So that's what a conditional styling is. Based on a condition, you rendered something else. That's conditional rendering. Based on a condition, you are styling it differently. That's what a conditional styling is. Okay. So I'll put this code here. Okay. And this to everyone. You can have a look at it. Uh, uh, Give it a try from your end. Also, it's there in the notes also, so you can check this out. Okay. Now, there's one small task that I'll give tomorrow. Basically, we will again have a quick revision. Again, whatever assignments are there in today's session, it's not related to this, so you can still do assignments without this. Okay. So I know it. I have intentionally
want you to go through this topic. Okay, ये जो last वाला topic है ना, it's a reading material majorly. Okay, that doesn't get discussed, but हाँ, I will discuss it, but I want you to go through it first. Okay, इसके related कोई assignment आपको नहीं मिलेगा, तो don't worry, so yeah, complete it, read it. Tomorrow we'll do a quick revision on this, and yeah, I hope you had a good time, and see you in tomorrow's session. Yeah, कल PSC जो होगा, I'll take the PSC also. Okay, assignments related thing के deadline आज का set किया गया है. ठीक है, I will inform the team, they will check, and if there is any update that needs to happen, they will update it. Okay, I'll inform them. Great. Thank you so much, and bye bye. Good night.